लॉकडाउन को इन्फोर्स करने के लिए पब्लिक के साथ सारी सरकारें जुटी हुई हैं। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की स्थिति नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह अगले 3 महीनों तक 5 किलो खाद्यान्न, उनकी पसंद अनुसार गेहूं अथवा चावल, फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में स्टेट्स और यूटीज के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। 13 अप्रैल 2020 तक लगभग 22 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा फूड ग्रेन्स भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से स्टेट्स और यूटीज द्वारा लिफ्ट हो चुका है। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को 24/7 मॉनिटर कर रहा है तथा अपनी हेल्पलाइंस द्वारा लोगों की समस्याओं और शिकायतों का भी निदान कर रहा है। अभी तक इस कंट्रोल रूम ने मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग से लगभग 5000 शिकायतों का निदान किया है। आपको जान के खुशी होगी कि इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पेशली मजदूरों की समस्याओं के निदान के लिए पूरे देश में 20 ग्रीवेंस सेंटर्स को स्थापित किया है। इन ग्रीवेंस सेंटर्स की फंक्शनिंग को चीफ लेबर कमिश्नर के स्तर पर सुपरवाइज और मॉनिटर किया जा रहा है। हेल्पलाइंस की विस्तृत जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन हेल्पलाइंस का उद्देश्य है कि पीड़ित मजदूरों को समयबद्ध तरीके से राहत मिल सके। हमारी आशा है कि इन कदमों के साथ हम लॉकडाउन मेजर्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हुए जनता की तकलीफों को दूर कर सकेंगे। Representative of Ministry of Finance. I'm going to provide the progress made so far on the Pradhan Mantri Garib Kalyan package of rupees 1.70 lakh crore announced by Union Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji on 26th March to ensure that the weaker section of the society continues to get the basic amenities and are not impacted during the lockdown period due to the COVID-19. The swift implementation of the package is being continuously monitored by the central and state governments, finance ministry, the concerned ministries, cabinet secretariat and PMO. As on 13th April 2020, yesterday, more than 32 crores beneficiaries have been directly given cash support through DBT amounting to rupees 29,352 crore under the package. In addition to the point made by my colleague of MHA, another point regarding is under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, the government has distributed free ration of food grains to 5.29 crore beneficiaries. 3,985 million tons of pulses have also been dispatched to various states and union territories for distribution. More than 97 lakh free Ujjwala gas cylinders have been delivered to beneficiaries under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. 2.1 lakh members of EPFO have taken benefit of online withdrawal of non-refundable advance from EPFO account amounting to rupees 510 crore. Rupees 14,946 crore have been transferred to 7.47 crore farmers towards first installment of PM Kisan. Rupees 9,930 crore has been disbursed to 19.86 crore women Jan Dhan account holders through DBT. Rupees 1,400 crores has been disbursed to about 2.82 crore old age people, widows and disabled persons under National Social Assistance Program. More than 2 crore building and construction workers have received financial support amounting to rupees 3,071 crore. The detailed press release relating to this PM
Garib Kalyan package is available on the PIB website, which I will request you to get access to that. Thank you. Representative from the ICMR, please. Until yesterday, we had tested 2,31,902 samples so far. कल 21,635 सैंपल टेस्ट हुए, उनमें के 18,644 यानी 18,644 वेयर इन ICMR नेटवर्क ऑफ लैब्स, 2,009 से 91 2991 were from private labs. As of now, we have 166 labs under the ICMR network. 70 labs which were belonging to private sector, they have already been approved as of now. With respect to, as I said, the kits that we have, we yesterday mentioned to you that we have kits that could last for 6 weeks. We have received another installment for RT-PCR kits, which are far more sufficient in numbers, which would essentially mean that we would be able to cover ourselves for a pretty long period of time. Additionally, we are ordering close to about 33 lakh kits for RT-PCR, and 37 lakh rapid kits are expected to come at any point in time. Now, Ministry of Health, representative, please. अब तक 218 से अधिक लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स के द्वारा अराउंड 377.5 टन इसेंशियल मेडिकल कार्गो इसको देश के दूर दराज इलाकों में पहुंचाया जा चुका है, जिसमें भी हमारा फोकस प्राइमरली रहा है नॉर्थ ईस्ट प्रांतों में, आइलैंड टेरिटरीज में और हिल स्टेट्स में। इसके साथ ही इंडियन पोस्टल नेटवर्क ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ऑनलाइन फार्मा कंपनीज के साथ टाई अप करते हुए हॉस्पिटल्स और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को भी डोर स्टेप पर उन्होंने इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट मेल्स के माध्यम से मेडिकल डिलीवरीज को पहुंचाने का कार्य किया है। हमारे जैसे इससे पहले कि हमारे कुलीग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया, उसके साथ ही आज फील्ड लेवल पर हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वह बैंकों के साथ काम करते हुए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी या बैंक सखी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना अकाउंट्स और एम्प्लॉय गारंटी स्कीम के तहत जो पेमेंट हैं उसको फील्ड लेवल पर लोगों को बैंक में जाए बिना उनको वह धनराशि दी जा सके, उसके लिए अपना सहयोग दिया है। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, उन्होंने उनके ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें मुख्यतः घनी आबादी यानी कि हाई डेंसिटी वाले जो एरियाज़ हैं, जैसे कि हम मुंबई का धारावी प्रांत ले लें या कोई और ऐसे एरियाज़ ले लें, दिल्ली के एरियाज़ ले लें, उसमें कोविड के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप के स्टेप्स लिए जाएं उसके बारे में एक गाइडलाइन दी है, जिसमें मुख्यतः कम्युनिटी शेयर टॉयलेट, वॉशिंग और बेदिंग फैसिलिटीज़ पर रिक्वायर्ड सैनिटेशन और हाइजीन सॉल्यूशंस कम खर्चे में कैसे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब तक की अगर डिटेल्स देखें तो अब तक टोटल 1036 पीपल क्योर हो चुके हैं। एंड मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कल एक ही दिन में 179 पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड एंड फाउंड क्योर्ड, और अब तक की टोटल संख्या अगर देखें तो 10,363 कन्फर्म केसेस देश में आए हैं, और जिसमें कि कल एक दिन में 1,211 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। टोटल 31 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं कल से आज तक, जिसको लेकर टोटल डेथ्स की संख्या 339 हो चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस करते हुए देशवासियों से कहा है कि हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए हमने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बताया है कि भारत ने अपने होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत काम करते हुए समय पर एक डिसीजिव एक्शन लिया, जिससे कि समस्या के हमने बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बट हमने प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन लिए हैं। उन्होंने इसके साथ ही कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने के बारे में भी बताया। 20 अप्रैल तक
देश के हर शहर, हर जिले का एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा किस जिले और किस शहर ने कोरोना स्प्रेड से संबंधित क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरह से अपने को बचाया है। इस टेस्ट के द्वारा, इस लिटमस टेस्ट की अप्रोच के द्वारा उन सेलेक्टेड एरियाज में जहां पर की स्थिति को अच्छे ढंग से नियंत्रण किया गया है, कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ की अनुमति भी दी जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इशू की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि लॉकडाउन मेजर्स का सही ढंग से पालन नहीं किया गया और उस प्रांत में वायरस के फैलने का खतरा है, तो क्योंकि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो जो भी सहूलियतें या जो भी एक सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ की परमिशन दी जाएगी वह विड्रॉ भी की जा सकती है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि दवाइयाँ, फूड राशन और इसेंशियल कमोडिटीज़ के संबंधित एम्पल रिजर्व भी फील्ड लेवल पर इंश्योर किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों से 7 चीज़ों पर समर्थन की अपील की, जिसमें उन्होंने मुख्यतः कहा है कि हमें सबको अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है, विशेषकर कि वह बुजुर्ग जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है। साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन मेजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग को हम 100% पालन करें। अपने जीवन में एक बिहेवियरल चेंज के रूप में हम सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट करें। साथ ही होममेड फेस कवर या मास्क का इस्तेमाल करें। आयुष मंत्रालय द्वारा गर्म पानी और काढ़े के सेवन के सजेशन को भी उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके द्वारा कि हम अपनी इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं। कोरोना इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने की मदद के लिए उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की विनती भी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर एफर्ट करना है कि गरीब परिवारों की फूड रिक्वायरमेंट्स का हम ध्यान रखें। अपना बिजनेस या अपनी इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी जो हमारे सहभागी हैं, उनका भी हम कंपैशनेट भाव से ध्यान रखें कि उनको कोई भी लाइवलीहुड से वंचित रहने की स्थिति में जो दिक्कत है उसमें हम उनको सहयोग प्रदान करें। हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटेशन वर्कर्स, पुलिस स्टाफ, उन सबको उन्होंने इससे पहले भी जैसे कहा है, उन्होंने कहा हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें। और अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया कि हम जहां हैं वहीं रहें और हर तरह से सुरक्षित रहें। इसके साथ ही जैसे कि आपको इससे पहले भी मैंने अवगत किया है कि हमारा एक एफर्ट रहा है कि हम इस पूरे समय में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं और उसके तहत अब 602 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जिसमें 1,06,719 आइसोलेशन बेड्स हैं और 12,024 आईसीयू बेड्स हैं, वह हम तैयार कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से। इस नंबर में भी निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस विषय में काम कर रहे हैं। इसी से संबंधित किए हुए एफर्ट्स के संबंध में जैसे कि एम्स दिल्ली में एक इनिशिएटिव लेकर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, मैं उसके बारे में आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में केंद्र सरकार ने शुरू से ही तमाम एजेंसियों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल समय की मांग है और इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। राजधानी दिल्ली में एक ऐसा ही डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल बनकर तैयार है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर और बर्न प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक में वहाँ पे बेड जो हैं हमारे यहाँ पे 250 बेड के करीब हो जाएंगे और बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में ऊपर आईसीयू भी हम तैयार कर रहे हैं। आईसीयू में 30 बेड और हम ऐड कर पाएंगे जो वेंटिलेटरी पेशेंट के लिए, और एक वार्ड भी वहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं जो पेशेंट को हम देख पाएंगे। अभी कुल 270 बिस्तरों वाले दिल्ली के इस कोविड-19 अस्पताल में 150 से ज्यादा आईसीयू बेड भी मौजूद हैं। ये यूनिक चैलेंज है, हमें अपने आप को सेफ भी रखना है और दूसरों की लाइफ सेव करना है। मैं तो कहता हूँ कि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं हैं उनकी भी इक्वल रोल है, तो ये एक टीम कॉन्सेप्ट है। कोरोना संक्रमण की संवेदनशीलता को देखते हुए इस डेडिकेटेड हॉस्पिटल को कई हिस्सों में बांटा गया है। जब वो पेशेंट पहली बार हमारे बर्न सेंटर को एक्सेस करता है तो वो सारे लोग पहले एक होल्डिंग एरिया में जाते हैं जिसको हमने वेटिंग एरिया किया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खांसी कर रहा हो उसको मास्क प्रोवाइड की जाएगी और उनको वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उस हॉल में पहले हम रखेंगे।
जो हमने डिवाइड किया हुआ है दो भाग में है, 2 पार्ट में है। एक है आप देख रहे होंगे ट्राइज स्टेप 1 है, जहाँ पे जो भी मरीज इस ट्राइज स्टेप 1 पे जो मरीज आएंगे यहाँ पे, तो हम उनकी हिस्ट्री और टेम्परेचर और साथ में सैचुरेशन ये सारे जांच करने के बाद देखेंगे क्या इनको सही में अस्पताल में रह के कोई इलाज करने की ज़रूरत है या और कोई जांच करके डिसाइड करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो वो सारे लोग जिन्हें हमें लगती है कि नहीं और फर्दर जांच करने की आवश्यकता है, वो हमारे ट्राइज स्टेप 2 आप देखेंगे कि इस कॉर्नर में हमने ट्राइज स्टेप 2 रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक रहेंगे। यहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावे जो इस जगह पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा, उनके वाइटल पैरामीटर्स लिए जाएंगे। सो ये पूरी व्यवस्था ट्राइज की यहाँ पे हमने इस तरीके से की है कि ओपन एयर हो, अगर किसी को कफ होता है तो इन्फेक्शन के चांसेस और कम हो। सो वो सारे मरीज जो ट्राइज 2 पे ऐसा हमें लगता है कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या कोई मेडिकल इलाज की ज़रूरत है या दवाओं की ज़रूरत है, वो सारे इस एरिया में आएंगे जो हम एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन एरिया या येलो एरिया कहते हैं। उसके बाद गंभीर मरीजों को रेड जोन में भेजा जाएगा, जहां आईसीयू और दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं। ये बिल्डिंग जिसमें हम खड़े हैं ये 124 बेडेड हॉस्पिटल है, जो कि बर्न्स प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक के तरह प्रोजेक्ट मोड में बनाया जा रहा था। अगर आमतौर पे देखते इसे कम से कम 9 महीने लगते काम करने में, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड टाइम में 15 दिन के अंदर, जिसके अंदर 30 आईसीयू बेड है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। और इसकी खास बात यह है कि जो इसके आईसीयूज़ हैं सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सबसे बेहतरीन आईसीयू सेटअप्स में से है। कोरोना की इस जंग में मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा बेहद जरूरी है और इस कोविड अस्पताल में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। जो हम राउंड लेते हैं, हम अपना क्लिनिकल राउंड लेते हैं, वो हम अपना आईपैड या आईफोन पे ले लेते हैं, तो अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट को देख लेते हैं, अंदर मॉनिटर देख लेते हैं, वेंटिलेटर की सेटिंग्स देख लेते हैं और सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसे दे देते हैं। सो क्लिनिकल टीम का एक्सपोजर कम होता है, पीपी बच जाते हैं और बहुत सी रिसोर्सेज हमारी बच जाती हैं। चाहे नीतिगत निर्णय हो या फिर मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता, केंद्र सरकार लगातार उचित कदमों को सुनिश्चित कर रही है। ऐसे में राजधानी के इस डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल की पहल निर्णायक साबित हो सकती है। आज मैं आप लोगों की दृष्टि में यही लाना चाहूँगा कि जैसे कि अगर देखें तो WHO का कल का डेटा देखें तो पूरी दुनिया में 76,498 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए। एक दिन में पूरी दुनिया में 5,702 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। ये हम सबका कलेक्टिव एफर्ट्स रहा है, जिसके कारण ही भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में अभी पिछले दिन भी अगर हम देखें तो 1,211 केसेस और 31 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। हमें सबको कलेक्टिवली मिलकर एफर्ट करना है। हमें ये इंश्योर करना है कि हर तरीके से जो भी ये केसेस आए इनको भी हम कैसे दूर कर पाएँ और हम अपने देश को इस बीमारी से बचा पाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आपसे पिछले 2-3 दिनों में और पहले भी जानकारी दी गई है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आज आपको 2 मिनट का छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन लेते हैं। प्लीज। Each and every problem has a solution. However, since COVID-19 has no definitive cure yet, the only solution to this mammoth problem is to control its spread. Arogya Setu, a powerful yet simple healthcare mobile app, can help us achieve exactly that and more. The app keeps track of the people the user comes in contact with, anonymously via Bluetooth and GPS, creating a secure and encrypted real-time social graph of the person. Only when a person tests positive and reports the case, the Government of India can fetch his real-time social graph for the last 14 days and inform those the infected person came in contact with, without sharing personal details. Helping all at-risk individuals seek immediate medical help and practice self-quarantine, saving time and saving the spread of the virus. The app will also help with risk self-assessment and enable the Government of India to reach millions of citizens to share important health notices and updates. The app personalizes pages and messages for different professional groups. Every individual's privacy is important. We keep the data absolutely secure and highly encrypted. The Government of India alone will access it and only for administering medical interventions.
We must flatten the curve, and Arogya Setu gives us that chance. Arogya Setu can help us fight coronavirus right now and then serve the nation as a critical healthcare management app. The time is now for Arogya Setu because मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित, भारत सुरक्षित. Now question from Each Mr. Ashok, ANI. सर मेरा सवाल ये है कि बीच में अभी हम लोगों ने देखे हैं जितने डेथ्स हुए हैं कोविड-19 की वजह से, उसमें क्या डेटा हमारे पास है जेंडर वाइज और एज वाइज? और दूसरा सवाल, चूंकि ये सवाल इसलिए है कि कई यूथ भी इसके आंकड़े में हैं, दूसरा सवाल ये है कि वेस्ट बंगाल और यूपी से क्या हमारे पास पर्याप्त टेस्ट रिपोर्ट हो रही हैं क्या? सर इससे पहले मैंने जेंडर वाइज और एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों की दृष्टि में आप सबके सामने प्रस्तुत किया था। तो उसमें अगर उस डेटा को देखें तो दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट बाहर आती हैं। एक तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिवाइड है उसके हिसाब से हमारे यहाँ यंग एज के लोगों को भी हमारे केसेस आए हैं कि जिसमें उनको पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन अगर हम डेथ डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि प्राइमरीली कोमॉर्बिडिटीज़ और साथ में एल्डरली एज, ये दो प्राइमरी रिस्क फैक्टर के रूप में उभर कर आए हैं। और यंग पीपल अगर इफ दे आर फाउंड इन्फेक्टेड ऑल्सो तो उसमें क्योर रेट भी हाई है। नो एक ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं। PSA ऑफिस की जो भी गाइडलाइंस रिलीज हुई हैं, अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस पेशेंट्स विद इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स सच एज फीवर, चिल्स, ड्राई कफ should report to frontline workers, ASHAs, Anganwadi workers. What are the frontline workers ASHA expected to do and how would they screen such patients? So, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में जो पब्लिक हेल्थ सेटअप है उसमें प्राइमरीली हमारे पास फ्रंट लाइन में आशाज, ANMs और हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। इन गाइडलाइंस के द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी गांव या किसी भी शहर में अगर आपको किसी को कोई भी सिम्टम हो तो चाहे आप हमारे कॉल सेंटर से अप्रोच करें, चाहे आपके जो क्लोजली अवेलेबल आपके हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी नॉलेज में डिटेल्स लेके आएँ। उन सब को हमने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, डिफरेंट ऑनलाइन मोड्स के थ्रू ऑलरेडी ओरिएंट किया है। उन सबको हमने गाइडलाइंस दिए हैं कि अगर इस टाइप का केस आपकी दृष्टि में आता है तो किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने सुपरवाइजरी लेवल पर इन्फॉर्म करें और किस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ये सेवाएं अवेलेबल कराएं। तो इसके थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हम फील्ड लेवल पर जल्दी से जल्दी किसी भी पॉजिटिव केस को डिटेक्ट कर सकें। मौसमी सिंह प्रमाद तक। मेरा पहला सवाल ICMR से है और दूसरा हेल्थ मंत्रालय से। सर, महाराष्ट्र सरकार ने ICMR को चिट्ठी लिख के अप्रूवल मांगी है क्लिनिकल ट्रायल्स को लेके, BCG टेस्टिंग को लेके, और प्राथमिक जांच में कुछ काफ़ी प्रभावशाली पाई गई है BCG वैक्सीन। उसको लेके क्या कुछ फैसला लिया गया है, उनको अनुमति दी गई है? और दूसरा सवाल हेल्थ मंत्रालय से, सर 40 दिन का लॉजिक क्या है? 21 दिन का लॉकडाउन था तो कहा गया कि साइकिल पूरा हो जाएगा, पर इसको बढ़ाया गया है, तो 40 दिन का कोई लॉजिक है? मेडिकल भी लॉजिक है क्या? अच्छा, ये जो BCG वैक्सीन ट्रायल करने का हिसाब है, ICMR कोई प्रोटोकॉल को अप्रूव कर सकता है, लेकिन ट्रायल की जो परमिशन होती है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया करके ICMR की होती है, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। दूसरा जो ट्रायल प्रोटोकॉल है वो CDSCO, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनको अप्रूवल को देना पड़ता है, उसके बाद में वो ट्रायल कर पाते हैं। मैडम, हमारा मेजर एफर्ट है कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे ब्रेक करें, और इसके तहत अगर आप देखें कि हम ये कहते हैं कि केसेस को अगर 28 दिन तक किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई केस ना आए, जो लास्ट केस नेगेटिव आए, तो उसके बाद हम ये मानते हैं कि वहाँ पर केसेस आने बंद हो गए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाती है। इसके तहत ही हम जो लॉकडाउन की परिस्थिति और साथ में लॉकडाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंस प्रमोट कर रहे हैं, ताकि इसके द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। मिस्टर रजत, इंडियन न्यूज। सर,
टेस्टिंग को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है लगातार। अभी आईसीएमआर ने बताया कि टेस्टिंग किट्स की हमारे पास कमी नहीं है, दूसरा लॉट आने वाला है, लेकिन एक बड़ा जो आप कह सकते हैं जो बातचीत चल रही है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी भी है कि टेस्टिंग में भारत बहुत पीछे है। क्या आप मानते हैं कि ये बात ठीक है या आपको लगता है कि नहीं, जिस हिसाब से टेस्टिंग देश में चल रही है वो सेटिस्फाइड है आपके लेवल पर? देखिए, जो किसने टेस्ट करना है इसके जो गाइडलाइंस बने हैं वो उतने ही ब्रॉड है। अब अगर कोई आदमी एलिजिबल होगा, कोई इंसान चाहता है कि हमारी टेस्ट करना चाहिए, वो कभी भी अपने आप को टेस्ट करने के लिए वो करवा ले सकता है। अगर इसके बावजूद भी अगर वो संख्या कम रहती है तो उसका या तो ऐसे कहें कि उस किस्म के लोग हमको मिल नहीं रहे हैं, उनकी संख्या शायद कम होगी। इससे बढ़ के मैं कुछ कह पाऊँ ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तो हम किसी को ना नहीं बोलते कि इसको टेस्ट नहीं करना है, अगर वो एलिजिबल है तो करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हमारा शुरू से एक एफर्ट रहा है कि हम जो भी पर्टिकुलर हमारा सैम्पलिंग क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम टेस्टिंग करें। नॉन क्राइटेरिया बेस्ड अगर हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बिना कोई टेस्टिंग करेंगे तो जो हमारी अवेलेबल टेस्टिंग किट्स है उनका प्रॉपर यूज नहीं होगा। इसके साथ ही अगर आप देखें, हमारे देश में एक मेजर एफर्ट रहा है कि हम एक प्रिएम्प्टिव अप्रोच में एक एडवांस एक्शन के रूप में काम करें, जिसके तहत कि जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न WHO ने 30 जनवरी को उन्होंने बोला, उसको अनाउंस किया, हमने उससे ही 12-13 दिन पहले हमने अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर दी। तो हमारा जो एक एडवांस एक्शन की वजह से एफर्ट रहा है, तो कुछ हद तक हमें लगता है कि दैट हैज़ बीन ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आवर मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज सो फार। और उसके तहत ही आज भी जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया में जो भी लोग हैं उन सबको हम सैंपल्स को टेस्ट करते हैं। साथ ही हम प्रोग्रेसिवली अपनी सैम्पलिंग जोन भी बढ़ाते रहे हैं। जैसे इससे पहले आपने एक रिसर्च पेपर के बारे में पूछा था, तो उसके तहत ही हमने सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस के रिलेटेड भी सैंपल टेस्ट किए। अब हमने रैपिड डायग्नोस्टिक किट भी फील्ड में इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस शुरू किया है, तो जिसके तहत हम ओवरऑल प्रोसेस भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि टेस्टिंग किसकी होनी चाहिए? टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए जिसको टेस्टिंग की जरूरत है। मिस्टर प्रशांत,